Now, my dear friends, let's talk about the lab investigations and diagnosis of the rabies. This is very simple. We are taking the blood sample, and in the blood, complete blood count picture is showing normal. And if we take the cerebrospinal fluid, this is also showing very mild changes, very less changes. It means whatever the fluid like blood or CSF present in the body, they are showing very less changes or very mild changes, or there are no changes. Okay, my dear friends, the fluid in the rabies infections, fluids in the rabies patients are showing no changes or very mild changes. And if we do the CT scan and MRI of the brain, then they also show very mild changes. They show very mild changes. It means the organ degeneration or neuronal degeneration is very लेस अगर बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ भी डैमेज होता, न्यूरोनल डिजनरेशन होता, तो सीटी स्कैन एंड एमआरआई स्कैन will definitely going to show some changes, but here the changes are very less. It means the neuronal degeneration is less as compared to neuronal dysfunction. How will you remember that? This ki neuronal degeneration is less while the neuronal dysfunction are more, and because of the neuronal dysfunction the patient of the rabies is undergoing death. सो रेबिस के अंदर क्या करना है, रेबिस हम लोग लिखेंगे, और रेबिस के अंदर जो बाई नंबर है, बाई इट इज गोइंग टू रिलेट विद द बायोकेमिस्ट्री. इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर रेबीज वायरस क्या करता है, बायोकेमिकल चेंजेस इन द न्यूरॉन्स. फ्लूइड के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा. फ्लूइड के अंदर मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, cerebrospinal fluid, all these will show normal, all these will show normal और very mild changes. but biochemistry किसकी चेंज होने वाली है, न्यूरॉन्स की बायोकेमिस्ट्री चेंज होने वाली है. एनाटॉमी इज नॉट गोइंग टू चेंज. ओके, एनाटॉमी इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओनली biochemistry is going to change. Biochemical changes occurs, and because of the biochemical changes neuronal dysfunction occurs more, and because of this the death occurs in the patient. Now if we do RT-PCR amplification, then this detects that this person is having a rabies virus RNA. Rabies virus RNA is detected by RT-PCR, reverse transcriptase polymerase chain reaction. How will you remember this? It is very simple. This R coming in the reverse transcriptase polymerase chain reaction will relate you with the RNA, because reverse transcriptase is only used when we want to make DNA from the RNA. So if we want to make DNA from the RNA, so there will be RNA present in the body of the patient, and from this RNA we are going to make DNA, and DNA copies are amplified, and those DNA copies, if they are multiplying, then it is showing that this person is having rabies virus RNA. Okay, so reverse transcriptase polymerase chain reaction will detect RNA. And if we want to detect the protein or antigen of the rabies, then we will do direct fluorescent antibody testing. It means we will give antibody from the outside, antibody of the rabies from the outside, and these antibodies are joined with the antigen, and if the antibodies are getting joined with the antigen, then it is showing that the person is having antigens of the rabies virus. Okay, my dear friends, so RT-PCR amplification and direct fluorescent
antibody testing. These two techniques are used to detect the RNA, to detect the rabies infection कि this person is having rabies infection. अब सैंपल हम लोग कहाँ से लेंगे? अगर RT-PCR हम लोगों को ये दोनों टेक्निक्स यूज़ करनी है तो सैंपल हम लोग कहाँ से लेते हैं? ऑब्वियसली the most commonly used sample is saliva, because saliva के अंदर there are large amount of rabies viruses are present in the saliva of the patient की saliva के अंदर से हम लोग सैंपल लेते हैं फॉर डूइंग RT-PCR एंड डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग. डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग मतलब कि एंटीबॉडी हम बाहर से डालेंगे और डिटेक्ट करेंगे एंटीजन को रेबीज के. ठीक है. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कमिंग टू नेगरी बॉडीज. दिस नेगरी बॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. नेगरी बॉडी के अंदर क्या याद रखना है कि नेगरी बॉडी आर इन द नेगरी बॉडी इज शोइंग दैट I will be present in those patients who are having rabies infection, rabies disease. Okay, NE in the negri bodies is saying that I will be present in the neuronal cells. NE in the negri body is saying what? I will be present in the neuronal cells of what? Which central nervous system? Cerebellum and hippocampus. C comes first, that is why I am writing here cerebellum first, then coming hippocampus. Now just remember that in the cerebellum Purkinje cells are present and in the hippocampus pyramidal neuronal cells are present. So this can be remembered as PAPA. Which neuronal cells? PAPA neuronal cells. So from this PA, Purkinje cell, and from this PA it is pyramidal cell. Why Purkinje is coming first? Because U comes first, then Y. OPQRST, UVW, XY, UVW, XY. So U comes first, so Purkinje will come first in this PA, and from this PA it is pyramidal cell. तो नेगरी बॉडीज के लिए क्या याद रखना है? पापा. From this PA it is Purkinje cell, and from this PA it is pyramidal cell. And Purkinje cell, it is obvious that this will be present in the cerebellum because C comes first and then hippocampus comes later. So these negri bodies are present in the neuronal cells. Which neuronal cells? PAPA, Purkinje cell and pyramidal cells. अब now within these cells, cell body of these cells, this is the cell body of pyramidal or Purkinje cell. So in the cell body, this is the cell body and this is the axon of the neuronal cell. Neuronal cells name pyramidal or Purkinje cell. Now this is the cell body. In the cell body, this is the cytoplasm and this is the nucleus. Now in the cytoplasm, the virus is going to live. virus का जो RNA मटेरियल है, अब एज वी नो कि रेबीज वायरस इज अ RNA वायरस. तो RNA and rabies virus is also having capsid layer. Rabies virus is also having capsid layer and this is forming protein part. So let's suppose this is the virus and this is the genetic material. So this is forming the covering of the virus and this is forming the genetic material, that is RNA, and this is forming the covering is forming the protein. So the protein part and the RNA part, genetic material, are kept inside the cell body, in the cell body of pyramidal cell and Purkinje cell. So they are forming as they are present in the cytoplasm. So this is called as cytoplasmic inclusion body, and it is looking like pink color shaped. That is why these are called as eosinophilic
साइटोप्लाज्मिक inclusion body, cytoplasmic inclusion body, and this is called as the negri body. अब नेगरी बॉडी के अंदर व्हाट इज गोइंग टू लिव, नेगरी बॉडी के अंदर क्या क्या रहता है, एक तो वायरल प्रोटीन रहने वाले हैं, वायरस आरएनए, आरएनए इज अ सिंगल stranded, so one, this is the nose is single, and eyes are two, so these are the protein part, and this nose is the viral RNA. So here the eyes are viral protein, while this nose is viral RNA material. So this is forming the Negri body, and these Negri bodies are present in the neuronal cells. That is why this is called as the Negri body. अब now the important question related to the Negri body is that क्या Negri body all patients के अंदर मिलेगी क्या? नहीं. Negri bodies is not found in all cases. Not found in all cases. This is very very important. So Negri body is not the, नेगरी बॉडी मिलेंगे ही सारे पेशेंट में, इट इज़ नॉट द कंपलसरी, किसी में मिल सकते हैं और किसी में नेगरी बॉडी, ये तो वायरस की इच्छा के ऊपर है कि वायरस अगर इन सेल्स के अंदर जाना चाहेगा तो जा सकता है, और उसकी इच्छा नहीं है जाने की तो नहीं जाएगा. दे विल नॉट फॉर्म द नेगरी बॉडीज देन इन दैट केस. तो नेगरी बॉडी फॉर्मेशन इज नॉट द पेकुलियर फीचर ऑफ द रेबीज. It is not found in all cases of the rabies. Now coming to types of rabies virus. This is again my dear friends very important. अब रेबीज वायरस कितने टाइप्स का होगा देखो. एक तो क्या है कि एक डॉग है जिसको रेबीज इन्फेक्शन हो गया. दिस इज द डॉग एंड दिस डॉग इज हैविंग रेबीज इन्फेक्शन. अब रेबीज का इन्फेक्शन होगा जब रेबीज के इन्फेक्शन के बाद जब इसके अंदर जो नेक के अंदर फेरेंजियल मसल्स हैं और सलाइवेशन, एंड दिस सलाइवेशन एंड फेरेंजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस foam at the mouth. So foaming at mouth is present. So this dog is infected with the rabies. This dog is having rabies. इस डॉग को कौन सी डिजीज है? रेबीज. सो दिस इज नाउ कॉल्ड रेबिड डॉग, एज दिस डॉग इज हैविंग रेबीज इन्फेक्शन और रेबीज डिजीज. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रेबिड डॉग. नाउ what we are doing, we are taking. So as these dogs are present on the street, they are present outside. So one type of virus that is present in the rabid dog is called as the street virus. This is the street virus or wild virus. What it called? Wild virus. Street virus or wild virus. मतलब if this virus will infect anyone, then it is going to cause rabies. This is going to cause rabies. This is pathogenic. स्ट्रीट वायरस, वन इज द स्ट्रीट वायरस. स्ट्रीट मतलब कि वाइल्ड. स्ट्रीट पर कौन रहते हैं? वाइल्ड पीपल. स्ट्रीट पर कौन रहते हैं? वाइल्ड. जब ड्रिंक वगैरह करके ये लोग पड़े रहते ना स्ट्रीट पर, सो दे आर द वाइल्ड पीपल. सो रेबीज, स्ट्रीट वायरस, and street virus can cause rabies. So what we are doing now, we are taking the street virus from the saliva of the rabid dog, and we are, और हम ये सैंपल लेकर, जो सलाइवा का जो सैंपल है उसके अंदर क्या है
स्ट्रीट वायरस, अब ये स्ट्रीट वायरस को हम क्या करते हैं, जो रैबिट है, रैबिट के ब्रेन के अंदर डायरेक्ट डाल देते हैं हम लोग। रैबिट के ब्रेन के अंदर हम लोग डायरेक्ट डाल देते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, जब रैबिट के अंदर ये वायरस जाएगा उसके ब्रेन में, तो ये वायरस क्या करेगा, रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा। रेबिस के ब्रेन में जाकर क्या करेगा, रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा। और रैपिडली मल्टीप्लाई करने के बाद कंटिन्यूसली रैपिडली दिस वायरस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई। अब कंटिन्यूस रेप्लिकेशन से क्या होता है, एज वी नो, कंटिन्यूस रेप्लिकेशन से क्या होता है, म्यूटेशंस। कंटिन्यूस रेप्लिकेशन से क्या होने वाला है, म्यूटेशन। और उस म्यूटेशन की वजह से कंटिन्यूसली रैपिडली मल्टीप्लाइंग दिस वायरसेस, सो दे आर प्रोड्यूसिंग म्यूटेशंस एंड दीज म्यूटेशंस कॉजेज decreases the pathogenicity of the virus, and now this virus is becoming innocent, and this innocent virus is called as the fixed virus. Fixed virus, it is free from disease. Fixed virus is free from disease. Why this virus is called as the fixed virus? Because it is having fixed incubation period. Fixed incubation period of 5 days. Fixed virus is having incubation period of 5 days. This incubation period is fixed. It means if this virus will go inside the body, inside the human body, then it is going to trigger our immunity very fast, because only 5 days, within 5 days we will get the immunity. Within 5 days we are going to get the immunity, while the street virus or the wild virus is having incubation period. Wild rabies virus is having incubation period of by लिखेंगे यहाँ पर नंबर 2 प्लस माइनस 1 करेंगे, इट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव अस 1 month to 3 months। 1 month to 3 months के अंदर तो सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं पेशेंट के अंदर, एज सुन एज द इन्फेक्शन अकर्स। इट मीन्स विद इन 5 days वी आर गोइंग टू activate our active immunity, and this active immunity will fight with the viruses that have entered inside our body, and they are just multiplying, they are not causing any symptoms, so our body will fight before this duration 1 or 3 months। मतलब वायरस जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी इम्यूनिटी तो पहले से ही रेडी है, क्योंकि इसको कितने दिन लगेंगे, अप्रॉक्सीमेट 30 days लगेंगे, 30 days। और हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी कितने दिन के अंदर डेवलप हो जाएगी, 10 to 15 days इम्यूनिटी अच्छी खासी अमाउंट में डेवलप हो जाएगी। मतलब इन वायरसेस के अगेंस्ट हम लोग पहले ही, सिम्टम्स आने से पहले ही हमारी बॉडी जो है वो इनके अगेंस्ट लड़ सकती है। सो फिक्स्ड वायरसेस आर यूज्ड टू मेक वैक्सीन। वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिक्स्ड वायरस। ओके, सो फिक्स्ड वायरस आर फ्री फ्रॉम रेबीज, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड innocent virus. They are called innocent virus. So you know types of rabies virus. 2 types of rabies virus. Rabies viruses are of 2 types. One are street viruses and one are fixed viruses. Now my dear friends, coming to treatment, and treatment is very very important, my dear friends. Treatment is very very important. So now let's suppose the dog has bitten here. The dog has bitten here. Now this dog bite can be of 3 categories: category 1, category 2 and category 3. It means if there is category 1, it means the skin is intact, so there is no need to give any treatment. But if
there is category 2 or category 3, then what we will do, before giving any treatment, before giving anti-rabies vaccine and rabies immunoglobulins, before giving anti-rabies vaccine and rabies immunoglobulins, first what we will do, we will observe the dog. In the first case, if there is category 1, there is no need to डू एनीथिंग, डॉग वगैरह किसी को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की बाइट है तो हम लोग क्या करेंगे, डॉग को रेबिस एंटी रेबिस वैक्सीन या रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने से पहले आइडियली तो ऐसा करना चाहिए हमें, ठीक है. तो क्या करेंगे हम लोग, डॉग को ऑब्जर्व करेंगे. डॉग को ऑब्जर्व किस केस में करना है, अगर कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 का बाइट हुआ है तो डॉग को ऑब्जर्व कितने दिन तक करेंगे हम लोग, 10 डेज तक करेंगे हम लोग डॉग को ऑब्जर्व, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. अब 10 डेज ही क्यों रखा है, क्योंकि हमें पता है कि रेबिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 1 से 3 मंथ. मतलब कि हमें जो भी करना है वो 1 मंथ से पहले ही करना है, इसलिए ये जो ऑब्जर्वेशन का जो टाइम रखा है वो 10 डेज का रखा है, ठीक है. अब 10 डेज तक हम लोग क्या करेंगे, डॉग को ऑब्जर्व करेंगे. अगर डॉग नॉर्मल बिहेव कर रहा है, डॉग कहीं पागल तो नहीं होगा, पागल कुत्ते बोलते हैं ना हम लोग, कहीं डॉग पागल टाइप से हरकत तो नहीं कर रहा है, डॉग हेल्दी है कि नहीं, उसको फीवर मलेज या फिर वॉमिटिंग वगैरह इस टाइप से तो कुछ नहीं हो रहा है, ये सब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उसके अंदर, ठीक है, इस 10 डेज के अंदर. अगर डॉग जो है वो नॉर्मल बिहेविंग या हेल्दी है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है और हेल्दी है, देन इन दैट केस वी विल नॉट गिव एंटी रेबिस वैक्सीन एंड रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स. जस्ट वुंड को क्या करेंगे, वुंड को मैनेज करके उसको, पेशेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वुंड को मैनेज करके और उनको घर भेज देंगे हम लोग, ठीक है. लेकिन अगर डॉग इज़ नॉट एक्टिंग नॉर्मली, the dog is not healthy, then in that case what we will do, we will take the brain sample of the dog, and what we will do direct fluorescent antibody टेस्टिंग और एंटीबॉडी स्टेनिंग. इसमें क्या करेंगे हम लोग, रेबीज़ का एंटीजन डिटेक्ट करेंगे. अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, मतलब कि डॉग को क्या है, रेबीज़ का इन्फेक्शन है. अगर ये टेस्ट नेगेटिव आया, मतलब कि डॉग की जो हेल्थ है वो किसी और वजह से ख़राब हुई है, यहाँ पर रेबीज़ का कोई रोल नहीं है, तो इन दैट केस वी विल नॉट गिव रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटी रेबीज़ वैक्सीन. तो एंटी रेबीज़ वैक्सीन या रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन देने का क्राइटेरिया क्या है, डॉग को ऑब्जर्व करो 10 दिन तक. 10 दिन के अंदर अगर वो हेल्दी रहता है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन या फिर रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर डॉग इज़ नॉट एक्टिंग नॉर्मली, इज़ नॉट बिहेविंग नॉर्मली एंड डॉग इज़ नॉट हेल्दी, देन इन दैट केस वी विल डू ब्रेन की फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग. एंटीबॉडी टेस्टिंग के अंदर क्या करेंगे, एंटीजन डिटेक्ट करेंगे. अगर वो पॉजिटिव आता है, इट मीन्स द डॉग इज़ हैविंग रेबीज़ इन्फेक्शन, एंड इफ इट इज़ नेगेटिव देन इट इज़ वेरी गुड. ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड एज यू नो कि व्हाट वी विल डू, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 है, तो ये तो हमको पता लग गया कि कब हमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन या रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन देना है. लेकिन वुंड को तो हमको मैनेज करना है, तो वुंड कैसे मैनेज करेंगे, वॉशिंग अंडर द रनिंग टैप वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स विथ सोप. जो हमारे कपड़े धोने का साबुन होता है, डेटॉल या कुछ भी, वॉट एवर द सोप वी हैव, विद द हेल्प ऑफ दैट सोप वी विल वॉश द वुंड अंडर द रनिंग टैप वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर वुंड ज़्यादा डीप है, कैटेगरी 3 का बाइट है, तो इन दैट केस, और सुचरिंग, वुंड को सुचरिंग की ज़रूरत है, स्किन को आपस में जोड़ने की ज़रूरत है, सुचरिंग करने की ज़रूरत है. तो इन दैट केस वी विल डू
suturing after 2 days. वैसे तो suturing is not recommended, but if still it is needed, then in that case we will do suturing after 2 days, and we will give antibiotics to the patient, and ARV and रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन तो हमको कब देना है वो डॉग के ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है. ओके माय डियर फ्रेंड्स. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कमिंग टू important notes related to the rabies, and this is very important again my dear friends. So if we talk about the prognosis of the rabies, मतलब रेबीज का इन्फेक्शन अगर हुआ है तो पेशेंट के साथ क्या होगा, तो पेशेंट विल ऑलमोस्ट undergo death. This disease is almost fatal. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रेगनेंसी में हम लोग रेबीज एंटी रेबीज वैक्सीन देंगे या नहीं. तो एंटी रेबीज वैक्सीन या रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी में हमें पेशेंट की लाइफ बचाना ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू ऑल अदर थिंग्स. These are, pregnancy is the byproduct. Pregnancy byproduct है, but here the life of the human being is very important. तो यहाँ पर there is no contraindicated because the disease is fatal. तो fatal है तो पहले तो हमें जान बचाना है. तो जान बचाने के लिए pregnancy is not major issue in giving ARV and rabies immunoglobulin. It means not contraindicated in the pregnancy. This is again very important point in the MCQ. In the MCQ, the examiner can make you in the doubt में confusion में डाल सकते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में रेबीज वैक्सीन देंगे या नहीं देंगे, रेबीज एंटीबॉडीज देंगे या नहीं देंगे. तो देंगे, 100% देंगे. ठीक है. अब बात आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का क्या रोल है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लोगों को अगर रेबीज का इन्फेक्शन हुआ है तो नहीं देना चाहिए, बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डिक्रीजेज आवर इम्यूनिटी. और अगर हमारी इम्यूनिटी इस समय, तो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है सो दैट आवर बॉडी कैन फाइट विद द रेबीज वायरस. with the rabies virus. So if there is rabies infection, then corticosteroids are contraindicated. Okay my dear friends, अब एक बात जो बताने की है इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि rabies can be of two types on the basis of clinical signs and symptoms, as we have seen, एनसेफेलाइटिक रेबीज और पैरालाइटिक रेबीज. तो पैरालाइटिक रेबीज के अंदर जो स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स आर द मसल्स, और मसल्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू स्फिंक्टर्स तक ये वायरस चला जाता है. तो स्फिंक्टर्स आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड इन द पैरालाइटिक रेबीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. अब रेबीज एंटी रेबीज वैक्सीन या रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं. तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स आर वेरी रेयर. एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर वेरी रेयर, बट समटाइम्स इट इज सीन दैट they may cause anaphylaxis. So anaphylaxis का ट्रीटमेंट एज वी नो एपिनेफ्रिन और एंटीहिस्टामिन्स क्या करेंगे कि जो भी रिएक्शंस हो रही है एनाफाइलेक्सिस के अंदर, जो भी रिएक्शंस हो रही है, इम्यूनिटी एक्सेसिव हो गई है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको एंटीहिस्टामिन्स क्या करते हैं, कम कर देते हैं. ठीक है. ब्लड वेसल्स वगैरह, जो भी हार्ट, हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो भी इररिलेवेंटली एक्टिंग कर रहे हैं, उनको क्या करती है, काम डाउन कर देती है एंटीहिस्टामिन्स. ओके. एंटीहिस्टामिन्स एंड एपिनेफ्रिन आर यूज्ड इन एनाफाइलेक्सिस.
Okay, my dear friends, and one important point in the MCQ, it can also comes that रेबीज वायरस जो होते हैं वो हीमेटोजिनस स्प्रेड नहीं होते हैं, ब्लड से नहीं फैलते हैं एक दूसरे में. मतलब अगर हम ब्लड डोनेट करना चाहता है कोई रेबीज पेशेंट, सो दे कैन डोनेट द ब्लड, बिकॉज थ्रू द ब्लड इट इज़ नॉट transmitted, through the blood it is not spreaded, it is not transmitted. And also through the blood, as let's suppose this is the person and this person is having the infection of rabies virus, so in that person the rabies virus will not travel here and there all over the body by through the blood. It is ट्रेवलिंग थ्रू द न्यूरॉन्स के साथ खेलता है ये रेबीज वायरस, ब्रेन के साथ खेलता है, नॉट विद द ब्लड. सो इन द ब्लड इट इज़ नॉट फाउंड. दैट इज़ वाई द ब्लड पिक्चर एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पिक्चर इज somehow changes or no changes, very little change or very mild change or there is no change. So hematogenous spread is very rare. So friends, this is all about the rabies. और रेबीज़ के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स माय डियर फ्रेंड्स आई हैव कवर्ड अंडर दी रेबीज़, एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट जितना मैंने आपको बताया है वो सब कुछ आपको अच्छे से यू हैव रिमेंबर्ड ऑल दिस थिंग्स. सो हमने रेबीज़ के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था माय डियर फ्रेंड्स. रेबीज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू द रेबीज़, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था एपिडेमिक्स, देन पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल सिम्टम्स, एंटी रेबीज़ वैक्सीन के बारे में हमने देखा था कि प्री प्रोफाइल एक्सिस में क्या करना है डॉग बाइट से पहले और पोस्ट प्रोफाइल एक्सिस में क्या करना है. फिर कैटेगरीज ऑफ बाइट हमने देखा था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इनके लिए क्या करना है हमें वो सब हमने देखा था. फिर हमने देखा था रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितनी देते हैं हम लोग, कितना क्वांटिटी में डोज देते हैं, कहाँ पर देते हैं. और फिर देखा था ट्रीटमेंट डॉग को ऑब्जर्व करना है. फिर देखे थे हम लोगों ने स्पेशल नोट्स. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द रेबीज़. और एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट कि इतने वीडियोस देखने के बाद, रेबीज़ के इतने वीडियोस जो हम लोगों ने अपलोड किए हैं, इतने वीडियोस देखने के बाद आपके एमसीक्यूज़ अगर इससे रिलेटेड आता है, रेबीज़ से रिलेटेड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आई एम 100% श्योर कि आप उसको करेक्ट करने वाले हो विदाउट एनी कन्फ्यूज़न. एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन clinical practice for medical practitioner who are practicing in the PSC, CSC and district hospital. कब हमें रेबीज़ वैक्सीन देनी है, कब नहीं देनी है, कब इम्यूनोग्लोबुलिन्स देना है, कब नहीं देना है, ये अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं. और किस टाइम पे हमें पेशेंट को बुलाना है रेबीज़ वैक्सीन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन कब कैसे करना है. So you know all these things. So my dear friends, this is all about the rabies, and thanks for watching all these videos series related to the rabies. And my dear friends, in the last, I wish you all the very best for your bright future.